Welcome back to the show. You're listening to FM 91. This is Cnergyico Pk, guys. I'm going to stay with you all the way till 5 o'clock. Jaane se pehle, I promised you that we're going to be bringing a very special guest for you guys. So bilkul uska time aa gaya hai. Let me tell you a little bit about their company first. So Cnergyico ke bare mein aaj hum baat kar rahe hain. As Pakistan's largest refiner, Cnergyico is responsible for more than a quarter of the petroleum products sold in Pakistan. As the nation's only vertically integrated oil company, Cnergyico has its own port called the Single Point Mooring (SPM), a deep-sea floating liquid port dedicated to the import and export, of course, of petroleum products. With a design capacity of refining 156,000 barrels of crude oil per day, Cnergyico produces a whole host of petroleum products, including premium motor gasoline, which is PMG, high-speed diesel, jet fuel, LPG, and fuel oil as well. They market their own brand of lubricants successfully through more than 425 retail outlets across Pakistan. Cnergyico consistently ranks amongst the top 6 OMCs of Pakistan in terms of market share and number of outlets, and are striving hard to lead in categories as well. So, Baico has recently been branded as Cnergyico Pk Limited, and that is why, and they have a very amazing campaign and tagline as well. It's called Safar Jiddat Ka. Innovation has always been a key component of their DNA. Now we are going to be talking to Mr. Muhammad Ali Shahzad, who's the General Manager Logistics of Cnergyico Pk Limited. Ali is an industry veteran and supply chain expert, and with a rich experience of over 15 years in the energy industry. He's currently the General Manager Logistics at Cnergyico Pk Limited. So we're going to be taking him on air now. Hello. Hello. Assalamualaikum Ali, kya haal hai aapke? Walaikum salam. Thank you, Wafa, for having me on the show. It's a pleasure. I'm so glad that you could take out the time and, come here to talk to us. Chale ji, I have got a lot of questions for you, Ali. Okay. ठीक है जी, शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि रिसेंटली जो बाइको रीब्रांड हुआ है Cnergyico से, तो मुझे क्यों ये स्टेप लिया गया और क्या इसके पीछे सारी डिटेल्स हैं? इसके लिए वफा I'll have to take you from the start. जी प्लीज. हमारा कोई 27 years का ये एक सफर है जो अभी चल रहा है, और इसकी जो फाउंडेशन है वो हमारे विजनरी जो फाउंडर हैं मिस्टर लेट परवेज अब्बासी साहब, उन्होंने 1995 में डाली थी. सही. जो कि उस वक्त एक 18,000 बैरल्स पर डे की रिफाइनरी थी, जो कि 2007 में 36,000 बैरल्स पे अपग्रेड की हमने, और उस वक्त हम बोसीकौर के नाम से जाने जाते थे. उसके बाद 2010 में हमने अपनी मार्केटिंग को लॉन्च किया और हमारा नाम बाइको में तब्दील हो गया. और सफर चलते चलते 2012 पे अगर मैं आऊं, जो आपने हमारी एक बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दी है कि हम 156,000 बैरल्स पर डे की रिफाइनरी अब बन गए हैं, वो 2012 में उसकी फाउंडेशन डली थी. हमारी दूसरी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स जो कि 1,20,000 बैरल की है, जिससे हमारी टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो 156,000 बैरल्स पर डे पे आ गई है. और उसके साथ साथ हम डिफरेंट हमारा जो मार्केटिंग सेक्शन है जो कि तकरीबन 450 रिटेल आउटलेट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट पाकिस्तान, वो हमें सपोर्ट करता है. और क्या कहते हैं, अपना हम केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो एक सेक्शन है, सिनर्जी को आपने बड़ा अच्छा उसको प्रोनाउंस किया, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन की. सिनर्जी सी स्टैंड्स फॉर केमिकल, एनर्जी, इंटीग्रेटेड कंपनी. तो हमारा जो पूरा सफर यहाँ तक पहुंचा है, अब हम केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी मूव कर रहे हैं. तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इस तरह प्रोग्रेस कर रहा है ओवर टाइम. सही, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. सर, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि Cnergyico की जो मार्केट पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके बारे में आप क्या शेयर कर सकते हैं? हमारी मार्केट पोजीशन जो है वो आपने जिस तरह राइटली कहा कि हम 6 नंबर पे आते हैं इस वक्त, बट हमारा वी आर नॉट लाइक एनी अदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी. हमारे बैक पे एक रिफाइनरी है और एक जो हमारा, क्योंकि मेरा ताल्लुक लॉजिस्टिक्स से है, तो मैं SPM जो आपने डिफाइन किया वो सिंगल पॉइंट मोरिंग या फ्लोटिंग जेटी जो हमारा पोर्ट है, ये पाकिस्तान का 3rd पोर्ट है, लिक्विड पोर्ट.
या सी पोर्ट जिसको हम कहते हैं, जो कि इनिशियल 2 पोर्ट्स जो हमारे हैं, जिसमें केपीटी जो है वो तकरीबन 30 से 50,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी के टैंकर्स को हैंडल करता है, और हमारा वाहिद पोर्ट है जो 2.5 लाख टन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा उसकी I absolutely love this information. Thank you very much for sharing. तो ये VLCC जो होते हैं, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, उनको हैंडल कर सकता है. दिस इज द ओनली पोर्ट एंड इट इज द ओनली प्राइवेट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान. Oh wow, brilliant. So अभी आपने मैसेज किया, और obviously आप because you're the logistics manager as well, general manager for logistics. So मुझे ये बताइए कि when we talk about the petroleum industry, तो उसके अंदर logistics किस तरीके से काम करता है? देखिए, पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इट्स हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री as far as distribution, consumption and supplies are concerned. तो हम उसी environment में रहते हुए अपने आप को हमने डेवलप किया है. हमारी एज अ कंपनी हमारा जो विजन और प्रायोरिटी है इज सेफ एंड क्वालिटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल्स, क्योंकि इट इज अ डेंजरस प्रोडक्ट लाइक मोस्ट ऑफ अस आई एम श्योर आर अवेयर. तो इसकी हैंडलिंग जो है वो इतनी सिंपल और आसान नहीं है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जिनकी इम्पैक्ट हमारे जो लाइफ के ऊपर है वो कम होता है. राइट सर, जैसे आपने अभी बिल्कुल मेंशन किया कि ऑब्वियसली इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो आप किस तरीके से इंश्योर करते हैं कि पूरा नेशन जो है वो कवर हो सके? लाइक हाउ डू यू इंश्योर नेशन वाइड कवरेज? देखिए, बेसिकली जो हमारी ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक को हम अपनी अगर हम ऑयल की लैंग्वेज में कहते हैं तो उसको हम प्राइमरी मूवमेंट कहते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी मूवमेंट. वी हैव 3 टर्मिनल्स दैट वी ओन एंड डेपोज, और उसके अलावा जिसपे हम प्राइमरी मूवमेंट इज फॉर द बेसिक बल्क मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम वहां पे लाके स्टोर करते हैं. सही. और फिर उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है टू आवर रिटेल आउटलेट्स. जो 450 का नंबर मैंने आपको बताया, तो वो हम उधर से हर रिटेल आउटलेट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ओवर अ स्पैन ऑफ डेज या वीक्स, वट एवर द स्केड्यूल इज, हम अपने वेरियस रिटेल आउटलेट्स को फीड कर रहे होते हैं. सही. So obviously when you do all of this and you're taking your product from one place to another, you need a lot of tanks and lorries and fleet as well. So do you guys have your own tanks and lorries जिसके थ्रू आप ये ट्रांसफर करते हैं? हम ओन तो बेसिकली जो हमारा इंडस्ट्री है इस वक्त, अगर मैं आपको उसका स्केल बताऊं, तो उसमें तकरीबन 13,000 टैंक लॉरीज इंगेज्ड हैं फॉर फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट पाकिस्तान. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द होल ऑयल इंडस्ट्री. तो for anyone to own that much tank lorries is if you look at the scale, is very difficult. तो हम भी अपने contractors को हमने outsource किया हुआ है. Right. But we are responsible for the quality and safety of these of the transportation. तो वो हमारी primary focus उसी पे होता है कि हम standards पे focus करें, जो कि क्योंकि इसमें various agencies involved हैं and the government is involved. तो सेफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें ADR स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, और NHA के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो हम सारे फॉलो करते हैं. फिर फ्यूल बीइंग डेंजरस प्रोडक्ट, फ्यूल हैंडलिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमें हर स्टेप पे उनके ऊपर फोकस करना पड़ता है. Brilliant. It's so good to know all of this. आप एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो जाता है सर, so I'm just going to be going towards a break, और उसके बाद हम वापस आके आपसे और भी बातें करेंगे. For whoever is listening to us, please stay tuned, and we're just going to be going towards a short commercial break and a track as well, and we'll be right back. And we're back. You're listening to FM 91. This is me, RJ Wafa. We have got Mr. Muhammad Ali Shahzad with us from Cnergyico. So keeping in mind the scale of Cnergyico, it's adding immense value to Pakistani economy. Iske alawa, because they're also engaged in the production of jet fuels, I think it's ensuring the nation's defense as well, that we're not just, we're manufacturing it and the company is Pakistani. There's Safar Jiddat Ka is the innovation and the key component
Innovation has always been a key component in their DNA, and that is exactly what we're talking about. We're talking to Mr. Muhammad Ali Shahzad from Cnergyico. He is the General Manager Logistics. काफी सारे सवाल इनसे हमने किए थे before we went towards a short commercial break, और इसके बाद now he's back with us. Welcome back to the show, Mr. Ali. Thank you, Wafa. अच्छा जी, सो अभी फिलहाल जाने से पहले हमने आपसे काफ़ी सारी बातें की. अभी आप गॉट अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस एज वेल. सो आई आल्सो जस्ट मेंशन्ड कि आप जेट फ्यूल्स भी जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? जी वाफा. सो आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द नेशंस डिफेंस एज वेल. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? Wafa, just to add to the scale of our work, if you talk about LPG, so हम LPG से लेकर एक normal daily running vehicle से लेकर जो हमारी आर्म फोर्सेस है, जिस तरह आपने मेंशन किया, उसको जेट फ्यूल भी सप्लाई करते हैं. So there is we have a vast array of products that we supply and add value to the economy. Plus energy need जो है वो आपको जिस तरह पता है कि that's the basic need to run anything. So we are in that business and we are proud to be in that business and we are proud to serve our country. Brilliant. Thank you so much for sharing that. इसके साथ ही हम जाने से पहले टैंक्स और लॉरीज और फ्लीट्स वगैरह की बात कर रहे थे. सो मुझे ये बताइए कि अभी रिसेंटली माशाल्लाह बिकॉज जहाँ से शुरू किया था जो आपने मुझे बताया और उसके बाद यहाँ पे आप खड़े, तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर के प्लान्स देखें, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी और हर चीज में जिद्दत और प्रोग्रेस की गुंजाइश है और हम taking advantage of the international standards and growth prospect of this industry. हमारे आगे भी projects हैं जिसमें हम अपना basically carbon footprint जो है उसको reduce करने के लिए हमारा एक upgrade 1 project है which is on the way, जिसे हम Euro 5 quality fuel बनाना शुरू करेंगे अपनी रिफाइनरी पे, जो कि अभी सिर्फ इंपोर्ट होता है पाकिस्तान के अंदर. एंड वी आर होपिंग एंड प्रेइंग टू गॉड दैट वी वुड बी द फर्स्ट रिफाइनरी इन पाकिस्तान जो ये स्टेप लेगा. सही, ब्रिलियंट. सर, इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू यू राइट नाउ, एंड बिकॉज कैंपस रेडियो इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन द यूथ. सो मुझे ये बताइए दैट ऑल द यंग प्रोफेशनल्स एंड ऑफ कोर्स ग्रेजुएट्स हु आर लिसनिंग टू यू राइट नाउ, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? जी, I would like to say कि we should be proud of our country and we should work in our respective जिस फील्ड में भी हम एंटर होते हैं उसमें जितना हम प्रोग्रेस ला सकते हैं अपनी वजह से और जितना हम अपना काम लोगों को अपने मुल्क को प्राउड कर सकते हैं उसके लिए हमें काम करना चाहिए. We should be focused and we should be patient. हमें अपने हाथ गंदे करने से नहीं डरना चाहिए. बहुत सारा यूथ आता है, उनके आइडियाज होते हैं अपने, दे वांट टू मूव वेरी फास्ट, बट आई वुड से कि जो आपके इनिशियल ईयर्स होते हैं वर्किंग के, उसमें आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितने ग्रास रूट लेवल पे आप काम कर सकते हैं वो आप करें, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट, टाइम इज समथिंग दैट यू कैन नॉट गेट बैक. सो फोकस एंड वर्क हार्ड एंड बी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क. Brilliant. So, इसके अलावा to all the listeners who actually got to know a lot about the petroleum industries, thanks to you. So, if they have missed something and they would like to follow Cnergyico's work or anything like that, is there a page that they can follow you guys on, on the internet or somewhere? जी, हमारा corporate page है, website है, Cnergyico Pk Limited. उस पे आकर आप information बिल्कुल ले सकते हैं. हमारा corporate head office है कराची में. इन हार्बर फ्रंट. अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना एक ट्रिप बनाना चाहते हैं या इंडस्ट्री के बारे में कुछ लर्न मोर अबाउट द इंडस्ट्री, दे कैन गेट इन टच विद आवर HR डिपार्टमेंट एंड वो उनके लिए सेटअप कर लेंगे मीट विद देम. Brilliant. Thank you so much. Thank you, sir, for joining me today and taking out the time. Thank you, Wafa. All right. My pleasure. Allah Hafiz. Allah Hafiz.